Good morning, students. Today I will discuss about the topic relationship between zeros and its coefficients of class 10, chapter polynomial. This is the topic relationship between zeros and its coefficients. In this topic, we will discuss about a quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c. So, in this quadratic polynomial, we may find the zeros of this, and after that, we will verify the relationship among this. So, let's start the relation. Let Px is equal to ax square plus bx plus c be any quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial because this have second degree, and we know that those equations which have degree 2 is said to be quadratic polynomial. We must have for this, as px is equal to ax square plus bx plus c, we must have the criteria a does not equal to 0. Students, if a equal to 0, then whole terms means this term will become 0 and only bx plus c will remain left. This means this is a linear equation, not a quadratic. So we must have for this criteria is a does not equal to 0. After that, we will say that this is a quadratic equation. So, because we have to find the zeros and we have to verify the relationship among these, we must have sum of roots. First, sum of roots, which is alpha plus beta, two of its roots, and second one is product of roots, and which is alpha into beta. And we have to find only this. मुझे ये दोनों फाइंड करना है, एक अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स कहलाएंगे और अल्फा इनटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाएंगे. तो हम लोग एक एक करके इसको निकालेंगे रिलेशंस कैसे आते हैं. मुझे याद रखना बस कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फा इनटू बीटा है, हम लोग दो रूट्स को कंसीडर करेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई ए होती है और ये सी बाई ए होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग क्योंकि ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है तो यहाँ पे दो रूट्स होंगे. यहाँ पे मैक्सिमम इसके दो रूट्स निकल सकते हैं, दो जीरोस के भी कह सकते हैं. रूट्स को हम लोग जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं. तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि दो रूट्स इसके लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स of px, and here px is nothing but px is polynomial given to quadratic polynomial ax square plus bx plus c is this is px. So if alpha and beta be the roots of px, then what we will write? Px, it means if alpha and beta are the roots of this means because quadratic equation in x, so x minus alpha and x minus beta will be the required factor of px, because we have studied about the factor theorem in class 9. Because when there is two roots alpha and beta, then x minus alpha and x minus beta will be the required factor of px. So we may write here px as equal to x minus alpha and x minus beta, because x minus alpha and x minus beta are the factors of this. So px is nothing but what? Ax square plus bx plus c, and which is equal to x minus alpha, because इसके जो रूट्स निकलेंगे वो इसी फॉर्म में निकलेंगे क्योंकि हमने अल्फा और बीटा को दो रूट्स इसके मान चुके हैं. तो हम लोग इसको रिराइट करने की कोशिश करते हैं. तो px is nothing but what? px क्या है? ax square plus bx plus c is equal to
अब यहाँ पे इसको हम लोग x माइनस अल्फा अभी भी लिखेंगे x माइनस बीटा, क्योंकि इसी के फैक्टर इसको मैं जब मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो यही मिलने वाला है। ऐसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो दो फैक्टर्स निकलते हैं, जितने डिग्री का इक्वेशन होते हैं उतने पॉसिबल रूट्स निकलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे a b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, है ना। और x जो होते हैं वो क्या होते हैं, each पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे इसको पॉलिनोमियल, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखें तो इसको रिराइट अगले स्टेप में लिख सकते हैं ना बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इस पूरे नंबर में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में अगर हम लोग कोई स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इस नंबर में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं वो जिसकी वैल्यू हम वेरीज करते हैं टर्म वाइज, तो हम लोग इसको यहाँ पे k को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर k इज स्केलर कांस्टेंट। अगर मान के चलो कि एक k का वैल्यू हम लोग 1 रख दिए, तो 1 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में, वही नंबर होता, तो हम लोग k को क्या मान लिए यहाँ पे, k इज अ स्केलर कांस्टेंट ना। ओके, जस्ट वी विल सॉल्व द फर्दर स्टेप, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, this is k which is multiple with whole term of x minus alpha and x minus beta. So first of all we will expand this x into x, what will be x square x minus beta minus x beta, here minus sign is here, and alpha into x, what will be x alpha, and minus minus plus, and alpha into beta, alpha beta. Students, this is a lack of place, so we will have to erase them, so note it down and after that you will see. Now from here what I have, ax square plus bx plus c is equal to, here you can see that sir k x square is as it is, here x beta and here x alpha, so what will be common, x will be common from here, so minus x will be common, and what will be in the bracket, alpha plus beta. You can say this x beta minus x alpha, x will be common and alpha plus beta will be in the bracket, and plus what is remain, alpha into beta. Now because k is multiple with both the terms of in the bracket, so we will multiply both the terms with k and we will get, first of all, k into x square, what will we get, kx square, k into minus x alpha beta, and k is multiple with alpha beta, what we will get, k into alpha beta. Okay, because we have to find the zeros and after that we will have to verify the relationship between this. So this is, you can see here, this is sum of roots alpha plus beta, and this is alpha into beta, which is product of roots. Okay, and now because this is the form of equation, so we will have consider it at equation 1. Now, because LHS term and in RHS term, you can compare the coefficients of like power of x. So you can see here is ax square and here is kx square. So what is the coefficient of x power, like power of x? Because x square will compare, after that a will be equate from k. So now comparing the coefficients of like powers of x from both sides, we get, हम लोग क्या पाते हैं, अगर हम लोग इसको इक्वेट कर दें तो क्या मिलता है, यहां से a फर्स्ट टर्म में ax स्क्वायर है, यहां पे क्या है kx स्क्वायर, ax स्क्वायर इक्वल टू kx स्क्वायर, x square will get cancelled, so which implies a equal to k, or you can write here
k इक्वल टू a मीन्स k जो हमने कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किया था स्केलर कांस्टेंट का k का, उसकी वैल्यू हमने निकाल दिया है। k इक्वल टू क्या आया, a आया। फर्स्ट टर्म का कंपैरिजन इससे किया क्योंकि लाइक पावर से कंपैरिजन करना है। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे क्या है माइनस kx अल्फा प्लस बीटा। तो लाइक पावर x के यहाँ दिख रहे हैं, तो सारा जो कोफिशिएंट x के होंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस k और अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे, क्योंकि x के कोफिशिएंट की बात हो रही है। और यहाँ पे bx जो है, ये bx x की कोफिशिएंट क्या है b। सो इक्वेट अगर मैं करूं, अगर यहां से इक्वेट करूं नेक्स्ट टर्म, तो क्या मिल जाएगा, वी हैव bx इज इक्वल टू होल टर्म minus kx alpha plus beta. From there, kx and x will get cancelled. So what we will get here? If we will find alpha plus beta, the value of alpha plus beta equal to minus b by k. You can see here, coefficient of alpha plus beta is minus k and b is there. So alpha plus beta will become minus b by k, and which implies, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी, बिकॉज k यहाँ पे आ गया है और k की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। k की वैल्यू क्या है a, तो हम लोग ये k के प्लेस में a लिख सकते हैं। और यही हमको फाइंड करना था कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी ये जीरोस के, है ना, तो जीरोस के रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस के, तो ये हम लोग लिखते हैं माइनस b बाई अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बोलोगे ये कैसे लिख दिए, तो ये लिखा इसलिए गया है क्योंकि हमारा जो इक्वेशंस का टाइप था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स की बात हो रही है, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या है माइनस b बाई a। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो तो b कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके साथ प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस, ये हम लोग निकाले डिराइव करके तो माइनस आ रहा है, तो इसके माइनस जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और बिकॉज कोफिशिएंट ये किसके x के कोफिशिएंट है b, तो हम लोग उसी बात को लिखे कि कोफिशिएंट ऑफ x है ये b, और नीचे वाला a जो है वो किसका है कोफिशिएंट x स्क्वायर का है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये समझने के लिए ऐसा हम लोग जनरली इसे ही यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, ये एक इसका वर्ड में फॉर्म है लिखा हुआ। ओके, नो ये सम ऑफ यही हो गया, इसी को हम लोग को डिराइव करके लाना था कि रिलेशंस जो होते हैं रूट्स के और जीरोस के कहते हैं, जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में यही निकल के आता है, इसी का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। एक चीज और मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए, वो मैं अब लाऊंगा इसे, तो मैं इसके लिए थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। हम लोगों ने जो इक्वेशन फर्स्ट माना था, जो रिलेशन आया था एक तरफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरी तरफ जो हम लोग स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो डिराइव किया था, लाया था, उसको उसी से मैं कंपेरिजन करूंगा तीसरे टर्म्स को जो कांस्टेंट टर्म था। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, इससे पहले अगर मैं उसे कह दूं कि जो वैल्यू था लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या था, इक्वेशन 1 में देखोगे तो c इक्वल टू लास्ट में क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आएगा k इंटू अल्फा बीटा। इक्वेशन 1 में मैंने इसे मार्क कर रखा है वहां से कंपेयर करके, क्योंकि हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं रूट्स का। तो यहां से अगर हम लोग अल्फा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले तो क्या मिल जाएगा, c बाई के मिलेगा, देख लो। और c बाई के नथिंग बट क्या, k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके a, इसके प्लेस में a लिख सकते हैं। और इसको अगर वर्ड में लिखना चाहेंगे तो c क्या होता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx फॉर्म, तो ये c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो हम लोग c के प्लेस में लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्योंकि a क्या होता है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यही रिक्वायर्ड इसका रिलेशन था जो प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये मैंने यहाँ पे बताया था c बाई ए होता है, तो c बाई ए यहाँ पे इसका मैंने डिराइव कर दिया। तो हम लोग ये दोनों रिलेशंस को अच्छे से समझ गए हैं, इसी के बेस में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे पॉलिनोमियल चैप्टर्स के।
तो सम ऑफ रूट्स हम लोग ने क्या सीखा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे बी बाई ए की माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में जो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लाया जो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लाया। तो ये हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। ये क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट्स, एंड ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। थैंक यू।